Now, let's start the second measurement of risk, that is, measurement of systematic risk. In the previous lecture, I have explained about the risk measurement by using expected return and risk and return formula. We have measured that risk by using mean and standard deviation formula. In this lecture, we will measure the systematic risk. अगर सिस्टमेटिक रिस्क होता है, आप अभी डिफरेंस समझ गए होंगे कि सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि अनसिस्टमेटिक रिस्क को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कैलकुलेशन होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क का बाय यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन फार्मूला. इन दिस लेक्चर वी विल see the measurement of systematic risk by using correlation and beta. अभी आगे हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है. The systematic risk of a security is measured by statistical measure called beta. ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि सिस्टमेटिक रिस्क का मेजरमेंट जो होता है वो बीटा से होता है. बीटा जो है वो रिग्रेशन से आया है ये वर्ड, अल्फा एंड बीटा. टू स्टैटिस्टिकल मेथड मे बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बीटा, नेमली कोरिलेशन मेथड एंड रिग्रेशन मेथड. सो सिस्टमेटिक रिस्क विल बी कैलकुलेटेड बाय कोरिलेशन मेथड और रिग्रेशन मेथड. आप पहले अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ा है तो आप ये कोरिलेशन मेथड से आपको पता होगा कोरिलेशन मेथड से हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो बाय यूजिंग कोरिलेशन मेथड बीटा कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला. यू मे बी फैमिलियर विद दिस फार्मूला, कोरिलेशन फार्मूला. If we are calculating the systematic risk by correlation method, we will use this formula. Correlation will be denoted by R, small r. This is the formula of correlation. Fine. Now, along with correlation, how beta will be calculated? For calculating beta, this formula will be used. So these are the two formula. By correlation method we will calculate systematic risk. Fine. हमने क्या पढ़ा? सिस्टमेटिक रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है. ईदर यू कैन यूज कोरिलेशन मेथड along with बीटा और रिग्रेशन मेथड. इट विल बी स्पेसिफाई इन योर क्वेश्चन कि आपको कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है. फाइन, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला है कोरिलेशन का एंड बीटा का ये फार्मूला है. इन बाय यूजिंग दिस टू फार्मूला वी विल कैलकुलेट द सिस्टमेटिक रिस्क. फाइन, उसके बाद ये तो है कोरिलेशन. नेक्स्ट है आता है आपका रिग्रेशन. Regression, this method helps to calculate the value of two constants, namely alpha and beta. The formula used for the calculation of alpha are given below. This is the formula of alpha. How to calculate alpha? Y bar multiplied by beta mean x bar. Y bar y mean, x bar x mean multiply by beta. For alpha we will use this formula and for beta formula will be same mentioned above. बीटा का फॉर्मूला एक ही है. ठीक है, इसी मेथड से आपको बीटा कैलकुलेट करना है. एंड अगर क्वेश्चन में बोला अल्फा कैलकुलेट करने के लिए तो आपको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. वेयर y बार y मीन इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे. x बार मीन्स मीन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
x will be independent variable, y will be dependent variable, and n is equal to number of items. ठीक है, this formula you have to remember, otherwise you will be unable to calculate the solution. So कोरिलेशन के लिए हम जो है ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बीटा कैलकुलेट करने के लिए दिस फॉर्मूला, एंड बाय रिग्रेशन if we are calculating alpha, so this formula will be used. Fine, let's see the question. Come to the question point of view. This is the question. Fine, what is this book? This book is portfolio management, portfolio management, S. Kevin. लाइब्रेरी से आपको ये बुक मिलेगी, एस केविन की सेकेंड एडिशन, portfolio management. You have to read this book only for security analysis and portfolio management. You will get all the numericals and theory part in this book only. So as soon as possible you issue the book from the library. Fine, चलिए अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में. Monthly return data. This is very important question. 3 times this question has been asked by the university in your main examination. Monthly return data are presented below for ITC stock and BSE national index for a 12-month period. This is the month ITC company's data and BSE company data. What you have to calculate? Calculate beta of ITC stock. जैसे ही हमको ये क्वेश्चन बोलता है कि बीटा ऑफ ITC स्टॉक और बीटा ऑफ व्हाटसोएवर कंपनी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी क्लिक इन योर माइंड दैट वी हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू कैलकुलेट कोरिलेशन बाय दीज इंफॉर्मेशन, देन आफ्टर बीटा. तो सबसे पहले आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है इस इंफॉर्मेशन के बेस पे, उसके बाद आप बीटा कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट पे, विच आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड. जस्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सी, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट. Fine, can you see that properly? Yes, calculation of correlation coefficient. ITC return आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, BSE return it is also given in the question. ITC returns will be your dependent variable y. ठीक, BSE returns x will be your independent variable. This is y and this is x. According to formula, first of all we'll have to take y square, then after x square, then after x multiply x by y. ठीक है, इस तरीके से जो है हम देखेंगे कि आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है. सबसे पहले हमने y का स्क्वायर किया, y स्क्वायर 9.43 into 9.43 88.92 0. Then after minus 4.31 multiply by minus 4.31, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया 18.58. In this way we have taken y square. Similarly x square, BSE return 7.41 मल्टीप्लाइड बाई 7.4941, तो ये आ गया आपका 54.91. देन आफ्टर माइनस 5.33 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5.33, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया 28.41. इसी तरीके से हमने पूरा बीटा का स्क्वायर किया, सॉरी BSE रिटर्न्स का स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई करना है हमको y and x. These two will be multiplied, x into y. 9.43 multiply by 7.41. Then after ये ज़ीरो हो गया, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई माइनस 5.33 ज़ीरो, माइनस 4.31 माइनस 7.35, ये हो गया 31.68. तो सिमिलरली हमने पूरा मल्टीप्लाई किया. फाइन,
देन आफ्टर सभी कॉलम्स के टोटल, y टोटल, x टोटल, y स्क्वायर का टोटल, y स्क्वायर का टोटल, x स्क्वायर का टोटल एंड xy का टोटल। ठीक, सभी कॉलम्स को आपको ऐड करते जाना है, बिकॉज इट विल रिक्वायर वाइल यूजिंग द फॉर्मूला। अब r का फॉर्मूला क्या है? कोरिलेशन का फॉर्मूला समेशन एक्स वाई इंटू एन माइनस समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाई समेशन वाई अपॉन अंडर रूट, होल अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई समेशन वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, राइट, एंड पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब फॉर्मूले में हम फिगर्स को पुट करते हैं। तो देखिए समेशन एक्स वाई का टोटल कहाँ पे है? ये लास्ट वाले कॉलम में। समेशन एक्स वाई का टोटल लास्ट कॉलम में 2160.49 मल्टीप्लाई बाई एन। नंबर ऑफ आइटम्स आपके जो है कितने हैं? 12 हैं। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम्स आपके जो हैं वो 12 माइनस समेशन एक्स का टोटल कहाँ दिया हुआ है? ये आपका सेकेंड कॉलम में समेशन एक्स का टोटल है 49.82। उसी तरीके से समेशन वाई का टोटल है 111.69। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम समेशन एक्स स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर किया था कॉलम फोर्थ में है हमारा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 1432.75 मल्टीप्लाई बाई एन मतलब नंबर ऑफ आइटम माइनस समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स मतलब आपका बीएससी रिटर्न 49.82 का स्क्वायर। ठीक है, 49.82 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है बेटा, ये समेशन एक्स। ठीक है, इंडिविजुअल एक्स इसका होल इसका स्क्वायर है। ठीक, तो उसको हमने लिया यहाँ पे 49.2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई समेशन वाई स्क्वायर कहाँ दिया है आपका? कॉलम नंबर 3 समेशन वाई स्क्वायर 3724.97। तो यहाँ पे हमने समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो समेशन वाई आपका क्या दिया है? फर्स्ट कॉलम में 111.69 का स्क्वायर। इस तरीके से हमने आगे इसको सॉल्व किया, ये पूरा हमने सॉल्व किया और लास्ट में जो है हमको अंडर रूट सॉल्व करने के बाद इस अंडर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 21,772.94। फाइन, उसका हम जो है अंडर रूट निकालते हैं तो इतना आता है। अब ये दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कोरिलेशन कितना आया? 0.935। सो बीटा का आपको क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन आपका ये था कैलकुलेट बीटा ऑफ आईटीसी स्टॉक। तो बीटा कैलकुलेट करने के पहले आपको कोरिलेशन आपने कैलकुलेट कर लिया R, दैट इज 0.935। नाउ यू कैलकुलेट दी बीटा। फाइन, कैलकुलेट करेंगे अब बीटा। कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ आईटीसी स्टॉक। फ्रॉम द अबव टेबल वी हैव द फॉलोइंग वैल्यूज। आपके पास सारे वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। अभी आपने कैलकुलेट किया है कोरिलेशन करने के लिए समेशन एक्स वाई, लास्ट कॉलम जो था समेशन एक्स दैट इज़ द सेकेंड कॉलम, समेशन वाई दैट इज़ द फर्स्ट कॉलम, समेशन एक्स स्क्वायर फोर्थ कॉलम एंड नंबर ऑफ आइटम्स। यही चाहिए आपको बीटा के लिए। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स वाई इंटू एन माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट नहीं होगा। ठीक है, हम यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट कर देते हैं, बट बीटा कैलकुलेशन में आपके डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट नहीं होगा, दैट इज ओनली फॉर कोरिलेशन।
यहाँ पे है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले में जो है फिगर्स पुट करिए, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशंस आर हियर। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा कितना आया? 1.384, 1.384, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे अल्फ़ा भी कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या था? वाई बार माइनस बीटा एक्स बार। इसी क्वेश्चन में से आप अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। वाई बार, वाई मीन इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई आपका फर्स्ट कॉलम में था 111.69 अपॉन 12, दैट इज 9.31। मीन समेशन एक्स अपॉन एन सेकेंड कॉलम 49.82 अपॉन